Very good morning, children. Welcome to the class. I hope you are concentrated toward your studies and focusing well. Okay, I think you are keep on revising also and making your notes on a regular basis. Children, anything can be improved just doing it on a regular basis. Otherwise, it will not going to be help you lot. If you want to bring a change in yourself, अगर if you want a change in yourself, so start having the good things in your habit and in your routine. See, the routine is the only thing which make you to bring change in your personality and nothing else in this world. Okay, so with this thought, I am going to start my class. Children, we are studying the chapter Social Influence and Group Processes. In this chapter, we came across so many topics. Okay, in the last video, yesterday, we have discussed about the types of group. तो ग्रुप के ही बारे में पढ़ रहे हैं, तो चलिए कुछ आगे भी पढ़ते हैं इसके. So, जो आज टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, the topic which I am going to discuss with you is the influence of group on individual behavior. Influence of group. Influence of group. ग्रुप की इतनी सारी बातें हो रही हैं, तो थोड़ा सा ये भी जानिए कि ग्रुप का इन्फ्लुएंस क्या पड़ता है. See, children, every time we have a discussion about the group only, but we forgot that in that group members are there and these members make the group. So every member have their own intellectual capacity, own personality, own attributes, own attitude, interest and value. Everything is different. So what is the influence of group? Group का influence क्या पड़ता होगा? Influence of group on individual behavior. ये हम लोग पढ़ेंगे. Group का क्या influence पड़ता है individual behavior पे? Here you will came across with some term which you already we have discussed in our previous chapter, which is the attitude and social condition. In that chapter also I have discussed with you some of the topic. So moving forward with that one, कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म है जो आप इसमें पढ़ोगे. So first of all I am writing those terms. First is social facilitation. Social facilitation. Second is social inhibition. Third is social loafing. And fourth is group polarization. So these four terms are, children. Out of these three we have discussed in the previous chapter also. So I think you can recall it. Social facilitation. What is the influence of group on individual behavior? तो ग्रुप के रहने की वजह से सोशल फैसिलिटेशन होता है. मैंने बताया था कि योर परफॉर्मेंस विल इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, सो दैट इज अ सोशल फैसिलिटेशन. अगर आपका परफॉर्मेंस लोगों के रहने से इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज अ सोशल फैसिलिटेशन. बट व्हेन योर परफॉर्मेंस इज डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, दैट इज अ सोशल इनहिबिशन. What is social loafing? Reduction in an individual effort when you are performing in a group. जब हम ग्रुप में परफॉर्म करते हैं तो हर एक इंडिविजुअल का जो एफर्ट है कि सब कोई नहीं एफर्ट करता, सो दैट इज अ रिडक्शन इन द इंडिविजुअल एफर्ट. लोगों के जो एफर्ट है वो रिड्यूस होते हैं, दैट इज अ सोशल लोफिंग. The last term which I had written here, the phenomena
पोलराइजेशन, ग्रुप पोलराइजेशन भी ग्रुप का एक पार्ट है और ग्रुप का एक इन्फ्लुएंस है इंडिविजुअल बिहेवियर पे। कभी कभी क्या होता है कि जब हम ग्रुप में होते हैं तो समटाइम द मेंबर टेक एन एक्सट्रीम डिसीजन, द एक्सट्रीम डिसीजन टेकन बाय द ग्रुप मेंबर इज नोन एज ग्रुप पोलराइजेशन। उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रुप पोलराइजेशन। व्हेन द एक्सट्रीम डिसीजन टेकन बाय द ग्रुप मेंबर इज द ग्रुप पोलराइजेशन। ग्रुप पोलराइज, नाम से पता चल रहा है एक सारे मेंबर एक ही जगह हो गए, पोलराइज हो रहे हैं। चलिए, सोशल फैसिलिटेशन और एक सोशल लोफिंग में एक सिंपल डिफरेंस है, ये अंडरस्टैंड कर लेंगे। सोशल फैसिलिटेशन की बात कर रहे हैं और सोशल लोफिंग की बात कर रहे हैं। सोशल फैसिलिटेशन, an individual performing an activity alone in the presence of other, and an individual performing an activity along with other as a part of larger group. सोशल फैसिलिटेशन और सोशल लोफिंग में डिफरेंस ये है कि सोशल फैसिलिटेशन पर्सन अकेले परफॉर्म कर रहा है, यानी सोलो परफॉर्म मीन्स बेसिकली इन अ सिंपल लैंग्वेज सोशल फैसिलिटेशन सोलो परफॉर्मेंस में भी हो सकता है, बट सोशल लोफिंग जो है वो ग्रुप में ही होगा, वो सोलो परफॉर्मेंस में नहीं होता, ग्रुप में। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि सोशल लोफिंग तब होता है जब हम ग्रुप में होते हैं और हमारा इंडिविजुअल एफर्ट कम लगता है। सोशल फैसिलिटेशन, so social facilitation is when an individual is performing alone in the presence of other, whereas social loafing is when an individual performing in group in the presence of other. आप कह सकते हो ये सोलो परफॉर्मेंस हो गया और ये ग्रुप परफॉर्मेंस। आई होप ये 4 टर्म्स आपको समझ में आए होंगे बच्चों। थोड़ा सा हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में द 2 टर्म्स आर देयर विच वी हैव टू स्टडी इन डिटेल। इन दोनों टॉपिक्स को हमें डिटेल में पढ़ना है। विच 2 टॉपिक? सोशल लोफिंग एंड ग्रुप पोलराइजेशन। इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक यू हैव टू डिस्कस दीज 2 टॉपिक इन डिटेल, सोशल लोफिंग एंड ग्रुप पोलराइजेशन। तो 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सोशल लोफिंग डिस्कस करेंगे। तो सोशल लोफिंग की मीनिंग मैंने कई बार आपको बताई है, क्या होता है सोशल लोफिंग, यानी इंडिविजुअल एफर्ट में रिडक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल असेंबली, व्हेन यू आर डूइंग अ मॉर्निंग प्रेयर, ठीक है, इतने लोग रहते हैं फिर भी क्या होता है कि हर कोई नहीं सिंग करता। सी सोशल फैसिलिटेशन पे जो रिसर्च हुई हैं वो ये सजेस्ट करती हैं कि लोगों के प्रेजेंट रहने पे हम अराउज होते हैं, वे हमें मोटिवेट करते हैं कि हमारे परफॉर्मेंस इन्हांस हो। ओके, दिस एनहांसमेंट ऑकर व्हेन अ पर्सन एफर्ट आर इंडिविजुअली इवैल्यूएटेड। ठीक है, बहुत सारी चीजें। व्हाट वुड हैपन इफ एफर्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ ग्रुप आर पूल्ड सो दैट यू लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप एज अ होल? Do you know what often happen? It has been found that individuals work less hard in a group than they do perform alone. This is known as social loafing. जैसे एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, आपके बुक में भी दिया गया, टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर आप सोशल लोफिंग के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। आई थिंक यू हैव प्लेड इट ऑल्सो। टग ऑफ वॉर, रस्सी जो खींचते हैं, तो हर एक एवरी इंडिविजुअल इज नॉट पुटिंग देयर एफर्ट। ओके, सो दिस इज अ सोशल लोफिंग। नाउ द 2 things you have to study in this one, the reason of social loafing and how it can be reduced. We study about the concept of social loafing. आपने सबसे पहले इसमें मीनिंग पढ़ा, मीनिंग आप इसमें बताओगे। 3 things you have to discuss: meaning, reason क्यों होता है सोशल लोफिंग,
और इसको कैसे आप रिड्यूस करोगे, सोशल लोफिंग कैसे रिड्यूस हो सकती है। तो ऑब्वियसली जब हम लोग प्रॉब्लम जान जाते हैं तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाता है। तो सेम इट इज, रीजन जानना बहुत जरूरी है कि सोशल लोफिंग होता क्यों ऐसा होता है कि जब हम ग्रुप में होते हैं तो हम अपना पूरा एफर्ट नहीं डालते। व्हाई इट इज सो दैट व्हेन वी आर इन ग्रुप वी डू नॉट पुट आवर ऑल इंडिविजुअल एफर्ट एंड ऑल 100%। ओके, तो व्हाट इज द रीजन? सो लेट अस डिस्कस द रीजन। रीजन डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आई एम राइटिंग इट विद द पॉइंट्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। What is the first point? Group members feel less responsible for the overall task being performed and therefore exert less effort. So less responsible यानी irresponsibility भी not irresponsibility word we can use, less responsible ये word हम use कर सकते हैं। So less responsibility भी एक reason है, लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक रीजन है कि इंडिविजुअल जो है पूरा अपना एफर्ट नहीं देते। लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक रीजन है। लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रीजन है, हो सकता है उनको ये लगता है कि मान लीजिए सपोज देयर इज अ ग्रुप ऑफ 10 मेंबर, एक ग्रुप है जिसमें 10 मेंबर्स हैं एंड ऑल द मेंबर्स थिंक दैट 2 or 3 people are only responsible for this particular task. We are not responsible. So if there is a feeling, it is a feeling of less responsibility. उनको उनके अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अदर विल डू इट. सो इट इज अ रीजन ऑफ द सोशल लोफिंग. सेकेंड, लेस मोटिवेशन. मोटिवेशन भी नहीं है. मोटिवेशन एक ऐसी चीज है विच एनर्जाइजेस द पर्सन टू डू समथिंग. कोई भी काम करने के लिए मोटिवेशन क्या है, वो एनर्जी देती है, अराउज करती है. तो मोटिवेशन ही नहीं है तो ऑब्वियसली सोशल लोफिंग होगा. व्हाट इज द थर्ड रीजन? नॉट बीइंग इवैल्यूएटेड. अगर उनको लगता है कि जो भी टास्क उनको दिया गया है, व्हाटएवर द टास्क इज असाइन्ड टू देम, it is not going to be evaluated, it is not going to be assessed, they will not put their effort. जो भी टास्क वो कर रहे हैं, जैसे असेंबली कर रहे हैं, उसके लिए उनको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो जहां उन्हें लगता है कि इस चीज के लिए उनको इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन मैटर्स अ लॉट, तो वो अपना 100% नहीं देते. ये भी एक रीजन है. आई थिंक यू को रिलेटेड विद इट. ओके, नेक्स्ट, नो कंपैरिजन. अगर उनके परफॉर्मेंस, उनके टास्क को कंपेयर नहीं किया जा रहा है, कंपेयर ना करने से कंपैरिजन के दोनों इफेक्ट है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. लोग कहते हैं कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, डोंट डू द कंपेयर. तो ठीक है, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, पर कहीं ना कहीं कंपैरिजन का कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है जो लोग इसे इग्नोर करते हैं. जब इंडिविजुअल मेंबर्स को, जब हम ग्रुप में होते हैं, इंडिविजुअल मेंबर्स को ये पता चलता है कि जो टास्क हम कर रहे हैं इसका कोई इवैल्यूएशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, हम कंपटीशन, यूजुअली कंपैरिजन गिव राइज टू द कंपटीशन. ओके, उनको ऐसा लगता है कि कंपटीशन नहीं है कोई भी, तो वे अपना एफर्ट नहीं लगाते हैं. ठीक है, सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ सोशल लोफिंग. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्यों सोशल लोफिंग होता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. ग्रुप में सोशल लोफिंग का एक ये भी रीजन है कि ग्रुप मेंबर्स का कोऑर्डिनेशन जो है आपस में इम्प्रॉपर है. इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर सोशल लोफिंग. एंड फाइनली, नो बिलोंगिंगनेस. नो फीलिंग ऑफ ग्रुप में, ग्रुप मेंबर्स का कोई बिलोंगिंगनेस की फीलिंग नहीं है, कोई यूनिटी नहीं है और कोई एक दूसरे के प्रति फॉर ईच अदर कुछ भी लव, केयर कुछ भी नहीं है. तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रीजन फॉर द सोशल लोफिंग. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन.
कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस ऑफ सोशल लोफ इन चिल्ड्रन। लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेस मोटिवेशन, not being evaluated, no comparison, improper coordination and no feeling of belongingness। ये सारे reasons की वजह से social loafing होता है। These are some of the reasons of social loafing। Now how can we reduce it? A very important point, हमने ये तो जाना कि reasons क्या हैं, अब इन्हें हम reduce कैसे कर सकते हैं। So just opposite to it the points, बहुत easy है इस question का आंसर करना। आप जब रीजन पता चल गया तो आप उससे रिड्यूस भी कर सकते हो। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे सोशल लोफिंग को रिड्यूस करने का? मेकिंग द एफर्ट्स ऑफ ईच पर्सन आइडेंटिफिएबल। मेकिंग द एफर्ट्स आइडेंटिफिएबल। अगर कोई पर्सन एफर्ट डाल रहा है तो एप्रिशिएट करो, प्रेज करो, उसको आइडेंटिफिएबल बनाओ, हाइलाइट्स करो उसके अचीवमेंट्स को, उसके हार्ड वर्क को। इससे सोशल लोफिंग रिड्यूस होगा, ग्रुप में बिलोंगिंगनेस आएगी, ग्रुप का जो हेड है वो सभी मेंबर्स को अप्रिशिएट करे टाइम टू टाइम, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनेगा, बहुत जरूरी है। सेकेंड, this is the very important point children for developing the unity, strength, belongingness, coordination among the group and among the group members, and that make the group strong. Second, increasing the pressure to work hard, making the group member committed to successful task performance। increasing the pressure को बढ़ाओ, increase the pressure बढ़ाइए सारे ग्रुप मेंबर पे कि बहुत कड़ी मेहनत करें। increase the pressure to work hard, कड़ी मेहनत करनी है। इससे भी ग्रुप में सोशल लोफिंग रिड्यूस होगा। जब प्रेशर रहेगा तो ऑब्वियसली एक दो नहीं, every individual put their effort and this will ultimately reduce the social loafing। इससे social loafing reduce होगा। Third, increase the value of the task। increase the जो task आपने दिया उसकी भी वैल्यू बढ़ाइए, उसकी भी इंपॉर्टेंस बढ़ाइए। increase the value of the task। टास्क की भी वैल्यू होनी चाहिए, जैसे कि पर्सन को ये कहीं भी ना लगे कि ये जो टास्क दिया गया है तो बहुत हल्का फुल्का या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये इतनी रिकग्नाइजेबल चीज़ नहीं है जो हम करें। तो टास्क की वैल्यू और इम्पोर्टेंस को बढ़ाइए। इंक्रीज द प्रेशर टू वर्क हार्ड। फोर्थ, मेकिंग पीपल फील दैट देयर इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंट। इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन को हाईलाइट करना, इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन इज इम्पॉर्टेंट। हाईलाइट करना इसको कि आप सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए और हम सभी के लिए। आप नहीं रहेंगे, उनको ये फील कराना कि हाउ मच यू आर इम्पॉर्टेंट, हर एक इंडिविजुअल को फील कराना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। जब वो फील कर लेंगे कि हाँ वी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रुप एंड द ग्रुप ऑल्सो हैव एन इम्पॉर्टेंस एंड वैल्यू फॉर अस, so they start putting their effort and reduce social loafing automatically reduce। उनको जब ये लगेगा कि नहीं मेरे बिना भी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, मेरा रहना बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ों की ग्रुप मेंबर को फील कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे, द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द इंक्रीज मोटिवेशन। मोटिवेशन इंक्रीज करिए, मोटिवेशन डेवलप करिए ग्रुप में, एंड belongingness।
बिलोंगिंगनेस को इंक्रीज करिए, बहुत जरूरी है बिलोंगिंगनेस। ग्रुप में बिलोंगिंगनेस होगी, सिर्फ बिलोंगिंगनेस ही तो सब कुछ है, बिलोंगिंगनेस ही तो सब कुछ है। ग्रुप में अगर मेंबर्स का आपस में लव है, एक बॉन्ड बना है, तो ऑब्वियसली कौन है कि जो अपने एफर्ट को कम करेगा, सब अपना एफर्ट देंगे। सो ये सारे कुछ टेक्निक हैं जिससे कि सोशल लोफिंग रिड्यूस हो सकती है ग्रुप में। अगर ग्रुप के मेंबर के एफर्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाए, मतलब उसको एक रिकॉग्नाइज किया जाए, वर्क हार्ड के लिए प्रेशर दिया जाए, टास्क की वैल्यू को बढ़ा दें, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को भी इम्पोर्टेंट रोल करें और बिलोंगिंगनेस इंक्रीज करें, तो ये सारी चीज़ें करने से सोशल लोफिंग डेफिनेटली रिड्यूस हो गए। ठीक है, तो आई होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टैंड अबाउट द सोशल लोफिंग, क्या होता है एंड व्हाट आर द रीजन, क्यों हो रहा है सोशल लोफिंग, क्यों ऐसा होता है कि सारे लोग अपना एफर्ट, द एवरी इंडिविजुअल्स आर नॉट पुटिंग देयर एफर्ट, एंड हाउ इट कैन बी रिड्यूस, ये कैसे रिड्यूस होगा। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सोशल लोफिंग, लेट अस स्टडी अबाउट द ग्रुप पोलराइजेशन। आई थिंक चिल्ड्रन आपको सोशल लोफिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। सोशल लोफिंग क्या होता है? सोशल लोफिंग में इंडिविजुअल जो होते हैं, देयर इज अ रिडक्शन इन द इंडिविजुअल एफर्ट व्हेन इंडिविजुअल परफॉर्मिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, and how it arises and how it can be reduced. Now, group polarization. I told you that when the extreme decision taken by the group member, it is known as group polarization. Group polarization. It is also the influence of group on individual behavior. ये भी एक तरीके से ग्रुप में रहने का इन्फ्लुएंस होता है इंडिविजुअल बिहेवियर पे। जब हम ग्रुप में होते हैं तो कभी कभी सारे मेंबर्स मिलके कुछ एक्सट्रीम डिसीजन भी ले लेते हैं, और ये क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन। सो ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रीजन ऑफ ग्रुप पोलराइजेशन। ठीक है, इट इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट वी ऑल नो दैट जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं दे वर टेकन बाय द ग्रुप, नॉट इंडिविजुअल अलोन। जैसे फैमिली है, फैमिली भी एक ग्रुप है। यू सी दैट वेन एवर समथिंग हैपन इन द फैमिली, सो क्या होता है, फैमिली में भी क्या होता है, कोई भी डिसीजन जो होता है क्या हम अकेले ले लेते हैं? नो। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइक इफ यू वांट टू स्टडी अब्रोड, सो एवरी मेंबर सिट एंड डिसाइड, like in the family also, like individual member want to be marriage, okay, married होना है तो शादी करनी है, तो all for all that a decision was taken by the group member, not an individual alone. तो कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जो होता है बच्चों, हम अकेले नहीं लेते, एक ग्रुप के मेंबर यानी फैमिली के सभी मेंबर्स बैठते हैं और दे डिसाइडेड, ओके, एंड सच अ डिसीजन इज नोन एज group decision. Okay, groups show another tendency referred to as group polarization. It has been found that sometimes groups are more likely to take extreme decision. ग्रुप जो होती है कभी कभी एक्सट्रीम डिसीजन हम अकेले नहीं ले पाते बट ग्रुप लेके ले लेती है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, इफ देयर मैरिज इज नॉट गोइंग वेरी प्रॉपर, हम अकेले वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि फॉर द सेपरेशन हम लोग सेपरेट हों या ना हो, बट ग्रुप मेंबर्स वो लेके वो सारी चीज़ें सुन के डिस्कस करके एक डिसीजन पे आ जाती है कि यस ठीक है, नाउ इट इज़ अ टाइम टू सेपरेट फॉर यू बोथ, you can make a divorce or something, anything. तो extreme decision group member ले सकते हैं, and that is a phenomena which is known as group polarization. एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं तो ये हमें क्लियर पिक्चर देगा। एक एम्प्लॉय है जो कि अपने ऑफिस में ब्राइब ले रहा था, घूस ले रहा था, और उसके कलीग्स ने ये डिसाइड किया कि उसको पनिशमेंट देंगे, and they may let him go scot free or decide to impose in a punishment
and make him suspend or make him terminated. ठीक है. This strengthening of the group initial position as a result of group interaction and discussion is referred to as group polarization. ग्रुप पोलराइजेशन में ऑब्वियसली डिस्कशन होता है, मेंबर्स एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं. नाउ द क्वेश्चन यही अराइज होता है कि कैसे ग्रुप पोलराइजेशन आता है. ओके, व्हाई द ग्रुप पोलराइजेशन ऑकर? देयर वर थ्री मेन रीजन. सो लेट अस स्टडी अबाउट द थ्री मेन रीजन. रीजन फॉर द ग्रुप पोलराइजेशन. रीजन में सबसे पहला रीजन आता है like-minded people. Like-minded people. Yes children, group polarization का सबसे मेन रीजन ये भी है कि जो ग्रुप में मेंबर्स हैं they have a same thinking pattern. All are like-minded. Like-minded means if one or two are asking that yes, that employee should be terminated from our office, so other will also comply over it. The other will also accepting or saying agreeableness, showing the agreeableness on that decision, and due to that an particular group will be able to take an extreme decision. That is a group polarization. So like-minded people. In the company of like-minded people, you are likely to hear newer arguments favoring your viewpoint. This will make you more favorable toward capital punishment, a harsh punishment. Second is bandwagon effect. Bandwagon effect. Bandwagon effect is also one of the phenomena which means that it is validated by the public. Bandwagon effect का मतलब होता है validated by the public. जो भी decision आप ले रहे हो उसे public यानी बाहर जो जनता है, other people are also validating it कि yes, you are doing a right decision, you are doing a good thing, you are doing a correct thing. Like those who are taking the bribe in their office, they should be terminated from the office because it was something an unethical act and nobody should do it. So children, are you getting कि कैसे extreme decision group members ले लेते हैं? क्योंकि लोगों की सोच एक जैसी हो जाती है, like minded people ज़्यादा होते हैं. Then bandwagon effect, ये public भी बाहर की जो है वो उसको validate कर देती है, कहती है कि सही है. Third is the similar views. Third reason is the similar view. जो similar viewpoint आप लिख सकते हैं, similar viewpoint और perspective. Similar viewpoint और perspective भी एक reason है group polarization का. सभी member, all the members are holding the same view. एक ही व्यू रखते हैं. When you find people having similar view, you are likely to perceive them as in group. The third is the similar viewpoint may lead to in group feeling. फिर क्या हो जाता है, हमारे अंदर एक in group की feeling आ जाती है और in group will lead to we feeling. तो जब ग्रुप में कि सभी के व्यू सिमिलर होते हैं, सेम पर्सपेक्टिव होता है, तो एक इन ग्रुप फीलिंग बनती है. एक तरह से बिलोंगिंगनेस जो होती है बहुत स्ट्रांग हो जाती है. तो जब बिलोंगिंगनेस स्ट्रांग हो जाती है तो दे आर वेरी इजीली कैन टेक एन एक्सट्रीम डिसीजन. You are likely to perceive them as in group. You start identifying with the group, begin showing conformity, and as a consequence, your views will become strengthened. So children, in this video, I had discussed with you what is the influence of group on individual behavior. So I discussed with you about social loafing. ये भी ग्रुप का एक इन्फ्लुएंस है जो कि इंडिविजुअल बिहेवियर पे पड़ता है. और सेकेंडली आई डिस्कस विद यू अबाउट ग्रुप पोलराइजेशन. ठीक है, ग्रुप पोलराइजेशन भी एक तरह से ग्रुप का इन्फ्लुएंस है इंडिविजुअल बिहेवियर पे. एक्सट्रीम डिसीजन ग्रुप लेती है, रीजन लाइक माइंडेड लोग होते हैं, बैंडवैगन इफेक्ट होता है, और इन ग्रुप वाली फीलिंग, द फीलिंग ऑफ इन ग्रुप, सिमिलर व्यू और पर्सपेक्टिव.
So here I have completed our topic, and this is for all today. I hope you understand the thing. I hope you learn with me that what is social loafing. I hope your concepts are clear. So just thank you so much, children. You are very much sincere and very much vigilant that you watch my video and sitting over there continuously. And I just hope that you will do better in your board examination. And you will do. Thank you so much, children.